Hello everyone, I hope you all are doing well. By keeping the coming examination in consideration, today we are going to deal with one of the most important writer, at the same time a frequent asked writer as far as UGC NET is concerned. He is he's named as Tennessee Williams, alright? Originally, Tennessee Williams belongs to America. He is an American. He is an American playwright and a screenplay writer. Or a screenplay writer, alright? Originally, Tennessee Williams is a pen name, alright? Tennessee Williams is a pen name, and the original name of Tennessee Williams is Thomas Lanier Williams. Thomas Lanier Williams, alright? Thomas Lanier Williams is the original name of Tennessee Williams, alright? So, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि टेन्जी विलियम्स का पेन नेम क्या है. तो टेन्जी विलियम्स अपने आप में ही पेन नेम है और इसका ओरिजिनल नेम जो है दैट इज थॉमस लेनियर विलियम्स. ही इज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड हिज क्लोज कंटेम्परेरीज आर यूजीन ओनील एंड आर्थर मिलर. ऑलराइट, आर्थर मिलर और यूजीन ओनील इसके क्लोज कंटेम्परेरीज हैं. यूजीन ओनील पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ जाके आप यूजीन ओनील को पढ़ें. आर्थर मिलर भी इम्पॉर्टेंट राइटर है, यूजीन ओनील भी इम्पॉर्टेंट राइटर है. एज वी ऑल नो, यूजीन ओनील वॉज बेस्ट आउट विद नोबेल प्राइज इन 1936. 1936 एयर जो डेट है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यूजीन ओनील इज विनर ऑफ 4 टाइम्स. यानी यूजीन ओनील को ड्रामा के लिए 4 बार पुलिट्जर प्राइज़ मिला है. किन किन वर्क्स के लिए मिला है वो मैंने अपने शॉर्ट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके रखा हुआ है, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें. ऑलराइट, सो लेट मी कम टू टेन्जी विलियम्स. टेन्जी विलियम्स, जैसे मैंने आपसे कहा, अमेरिकन प्ले राइट है एंड द ओरिजिनल नेम ऑफ टेन्जी विलियम्स इज थॉमस लीनियर विलियम्स. ही इज़ क्लोज कंटेम्परेरी ऑफ आर्थर मिलर एंड यूजीन ओनील. Now let me talk about the major works of Tennessee Williams in chronological order. All right. The first work that comes in chronological order and is most important, titled as The Glass Menagerie. The Glass Menagerie. The publication date of Glass Menagerie is 1944. Then most important work, The Streetcar Named Desire. Publication date of this work is 1947. Very easy to remember, it's the Independence Day of our country. Third work is The Cat on Hot Tin Roof. Alright, the publication date of this work is 1955. Then next work in chronological order and most important is Sweet Bird of Youth. Sweet Bird of Youth. Publication date of this work is 1959. And last important work is The Night of Iguana. The Night of Iguana, IGUANA, and it carries publication date. The publication date of Night of Iguana is 1961. Okay? So एक बार मैं publication date जो मेजर वर्क्स की है वो रिपीट कर रहा हूँ. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन एग्जाम फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो द ग्लास मेनेजरी 1944, द स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर 1947, द कैट ऑन टिन रूफ 1955,
The Sweet Bird of Youth 1959 and The Night of Iguana 1961. All right, this is the chronological order of the major works written by Tennessee Williams. All right, so आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट वर्क डिटेल में ब्रीफ स्टोरी के साथ और मेजर कैरेक्टर्स थीम्स के साथ डील करेंगे. दैट वर्क इज द स्ट्रीट कार नेम्ड Desire. All right. The publication date of this work, as I already have mentioned, is 1947. It's very easy to remember. Basically, this work deals with the harsh experiences of a character named Blanche Dubois. Dubois नहीं, Dubois पढ़ते हैं, right? This work deals with the harsh experiences of Blanche Dubois, how her experiences are very harsh, very critical and difficult because she shifted her home from Mississippi to some another country. Likewise, like other characters are also very important. Apart from Blanche, there is a character. Blanche का नाम लिखते हैं, Blanche Dubois. मेजर कैरेक्टर्स की बात करूँगा, फिर प्लॉट को डील करेंगे. नेक्स्ट इज स्टेला कोवल्स्काय. थर्ड कैरेक्टर इज स्टैनले कोवल्स्काय. फोर्थ इज मिच. फिफ्थ वन इज Eunice basically. And there is another character which is a minor character, but that character is very important as far as the episodes of novel are concerned. That character is Ellen Gray. Okay. Brief introduction बता दूं. Blanche and Stella are sisters, and Stella Kowalski is married to Stanley Kowalski. Mitch is a friend of Stanley and he is a poker player. Very important. Profession exam में पूछा जा सकता है. Mitch is a poker player. Eunice are the neighbors of Blanche and Stella, and Ellen Gray is deceased husband of Blanche. Blanche was earlier married, but उनके husband की death हो गई थी. The name of her husband is Alan Gray. All right. Now let me talk briefly about the harsh experiences of Blanche Dubois. The first difficult experience which she encountered in the life is that Blanche Dubois makes a shift from Mississippi. All right, and Mississippi is also the birthplace of this Tennessee Williams, and it falls in it is in basically America, Columbia. All right, Blanche जो है वो शिफ्ट करती है मिसिसिपी से किसी और कंट्री के पार्ट में, और Blanche जो है she went to Stella. As you know, Stella is a married sister of Blanche, और Blanche के हस्बैंड जो है वो स्टैनले हैं. ब्लांच डूबा शिफ्ट करती है अपने घर से और अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाती है, यानी स्टेला और स्टैनले के पास स्टे करती है. बट ब्लांच इज़ नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड बाय बिहेवियर ऑफ स्टैनले टूवर्ड्स हर सिस्टर स्टेला. ब्लांच जो है वो स्टैनले के बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं है, और इस बिहेवियर से खुश ना होते हुए शी इंटरप्ट्स इन बिटवीन द रिलेशन ऑफ स्टेला एंड स्टैनले. ऑल राइट. और जब ब्लांच इनके रिलेशन में स्टेप इन करती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फैमिली का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है. ऑल राइट. एज यू नो, ब्लांच हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हर हस्बैंड, एंड नेम ऑफ हर हस्बैंड वॉज एलन ग्रे.
एलन ग्रे, ऑल राइट। एंड मिच जो है, अब मिच की एंट्री जो है वो प्ले के अंदर होती है। एंड मिच इज़ अ पोकर प्लेयर, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, ही इज़ अ पोकर प्लेयर। अब ब्लांच जो है, शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मिच, ऑल राइट। मिच की तरफ ब्लांच का पूरा झुकाव हो जाता है कि माइट बी मिच विल मैरी हर लेटर ऑन एट द एंड ऑफ नॉवल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑल राइट। अब क्या होता है कि ब्लांच का एक बार बर्थडे आ जाता है, और बर्थडे पार्टी के अंदर क्या होता है कि सारे लोग बैठे होते हैं, मिच भी वहाँ पे आ जाता है, मिच का भी स्वागत किया जाता है। अब बर्थडे पार्टी के अंदर स्टैनले क्या बर्थ प्रेजेंट उसको देते हैं, यानी गिफ्ट क्या प्रेजेंट करते हैं ब्लांच को, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय स्टैनले टू ब्लांच, वो गिफ्ट क्या था वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे बर्थडे पार्टी इज़ अ प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर, वहाँ पे क्या गिफ्ट दिया जाता है, वहाँ पे ड्रम दिया जाता है। बट इन केस ऑफ द स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, स्टैनले जो हैं, स्टैनले गिफ्टेड a bus ticket to Blanche Dubois, to return to uh, to return to Mississippi। जो स्टैनले हैं वो ब्लांच को एक बस टिकट देते हैं कि आपकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, आपको मैं एक बर्थडे टिकट प्रेजेंट करता हूँ एंड यू रश बैक टू योर ओरिजिनल डेस्टिनेशन, ऑल राइट। बर्थडे के बाद क्या होता है कि ब्लांच जो है, ब्लांच वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्टैनले, यानी ब्लांच वॉज हैविंग शी वॉज कास्टिंग द फेवर्स फ्रॉम स्टैनले, लेकिन ऐसा नहीं होता है और स्टेला को पता चल जाता है। स्टेला जो है, शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। जब ब्लांच को स्टेला और स्टैनले के रिलेशन का पता चलता है, ऑल्दो दे आर मैरिड बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द बेबी अर्लियर, लेकिन वहाँ पे जब वो हॉस्पिटल चले जाते हैं टू डिलीवर द बेबी, तब ब्लांच की टेंशन से ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब जो है स्टैनले मेरे साथ प्यार नहीं करेगा, ऑल राइट। ये हॉस्पिटल में होती है स्टेला और ब्लांच घर पे होती है स्टेला के। स्टैनले ब्लांच के पास घर में वापस जाता है एंड ही डिमांड सम फेवर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लांच उसको एक ग्लास बॉटल से उसके सिर पे मारती है, ऑल राइट, और खुद क्या हो जाती है, शी फेंटेड ऑन द फ्लोर, ऑल राइट। जब वो फेंट हो जाती है तो उनके घर पे एक डॉक्टर आ जाते हैं, और यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाता है। ब्लांच डॉक्टर से क्या कहती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लांच क्या बोलती हैं, आई हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, आई हैव ऑलवेज depended on the kindness of strangers, all right, I have always depended upon kindness of strangers, whoever you are, एक तो एट द क्लाइमैक्स में ब्लांच ये डायलॉग बोलती है, I have always depended on the kindness of strangers, whoever you are, and next incident जो climax of novel पे होता है, that is the poker game goes uninterrupted, all right, और पोकर प्लेयर कौन है, मिच है। इस नॉवल के बिगिनिंग में एक मिस्ट्री होती है। मिस्ट्री क्या होती है कि ब्लांच वाज वर्किंग इन अ स्कूल
and it was believed that she was having some extramarital relations, she was in relation with some teenager. Starting में ये पता नहीं होता कि श्योर है या गलत है, whether this news is fake or authentic, but at the 11th hour or at the climax of the novel, it was declared, fact that yes, Blanche was having the relations with a teenager, and later on she worked as a prostitute in a hotel. Alright, I hope आपको ये एपिसोड्स अनइंटरप्टेडली और अनकनेक्टेड सी स्टोरी मैंने डिलीवर करी. आई नो इट. आप जाके इसकी स्टोरी एक बार ज़रूर पढ़ें. और पेन नेम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मेजर कैरेक्टर्स कौन है, कौन सी गेम है इसके अंदर, व्हाट वाज द मिस्ट्री इन इट एंड व्हाट इज़ द पब्लिकेशन डेट, वो मैंने आपसे बात करी. थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड. बी हार्ड वर्किंग, बी स्मार्ट. Take care, bye bye, and don't forget to subscribe and like the channel.